Hi everyone, welcome to lecture 6 of our previous year question series for CTS and NDA aspirants for the upcoming exams. This series is particularly aiming at completing the previous year questions from the last 5-6 years by September attempt of CTS exam. And we are going to take up the next set of previous year questions today and sharpen your concept clarity further. Be ready. Today's set has a mix of scoring and slightly tricky questions. We'll go deep into very specific history questions which have been in the trend for years now. Also, anybody who is new to the channel, welcome to Meta Learning. And this on this channel, we regularly post previous year questions and concept clarity videos for all the subjects GS, maths, and English, etc. So do check it out by going onto the channel. Anybody who has not attended the orientation, please go ahead and attend the orientation as well. One thing I would like everybody to do is have a glass of water or a bottle of water while you're sitting here so that there is a continuity and you do not get distracted. Another thing is that try to solve the question yourself first and then move on and play the video and understand the concept with me. Here we'll not just be understanding and mugging up the questions, alright. We will also be uh, understanding the approach to the answer, like how you should be doing that on the day to day. Another thing is my apologies for my voice because I have been suffering from severe cold and my voice has actually gone really bad. और इसके अलावा I would really appreciate your feedback on our channel on the in the comment sections. Another thing is that PDF of all these lectures you'll be getting post lectures in our Telegram channel. So do join it. It's in the comment section. It's in the either in the first comment or in the caption. All right. Yes. If there is anything else, any feedback, any questions, any queries, any doubt from your end, do let me know. Another thing that I've been asking for the last 5 lectures is if students जो कि हिंदी में पढ़ाई कर रहे हैं उनको ज़रूरत है कि हिंदी में भी क्वेश्चंस को हम यहाँ पे लगाएं और ऑल्दो यहाँ पे जो क्लासेस हो रही हैं वो बाइलिंगुअल लैंग्वेज में हो रही हैं हिंदी एंड इंग्लिश बट आई वुड रियली लाइक टू नो इफ हिंदी के बच्चों को चाहिए अलग से हिंदी में लिखा हुआ भी. So that will be another thing that I would like to ask from all of you. Do let me know in the comment section again about this as well. Do participate in the questions that I ask you mid lecture. Provide the answers in the comment section. I'll see each comment and reply to you. So yeah, let's get started with our first question from history. So before we start, I would like you to pause this video right here and try to answer it yourself. And then let's play together. And as usual, we'll first go option by option. And before that, we'll understand what this question is coming from. Sorry, where this question is coming from. What is the need of it? And we'll also understand important terms like about Ain Akbari, about the scholar who wrote Ain Akbari, and why was Indian sciences even integrated. Alright, so pause and then play. Now, hopefully you must have. तो हम आगे बढ़ते हैं. So the question is, which one of the following is listed in Ain Akbari as one of the Indian sciences prescribed by Akbar for scholars to learn at school?
Ayurved, Vyakaran, Ganit, Jyotish. Now, yeah, this was a confusing question at the time when it came because there's a mention of like Ganit also. There's a mention of well, Vyakaran का use हुआ है क्योंकि translation उस time पे काफी हुआ है from Sanskrit to Persian. However, और even Ayurved का mention है, but the answer थोड़ा confusing था, but I'll tell you how to go about it. Alright. So, before analyzing the option, let's understand what is Ain Akbari, right? So, Ain Akbari was the third volume of Akbarnama. Akbarnama क्या थी? Akbarnama was the biography of Akbar, the ruler. ठीक है? Now, who wrote Ain Akbari or basically Akbarnama? Abul Fazl. ठीक है, तो ये जो थर्ड वॉल्यूम थी इसका स्ट्रक्चर क्या था? ना इसका स्ट्रक्चर ये था कि इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, आर्मी ऑर्गेनाइजेशन, रेवेन्यू सिस्टम, कोड, प्रोटोकॉल, कल्चरल लाइफ, एजुकेशनल करिकुलम, ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन, स्टैटिस्टिकल डेटा, इन सब चीज के बारे में था. कल को अगर क्वेश्चन आता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन आइन एक्बरी, यू कैन क्लियरली आंसर दैट बाय लाइक जस्ट नोइंग कि अच्छा ठीक है, दिस इज व्हाट इट कंटेन्स, राइट. कल को पूछ लेते ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शंस थे कि नहीं थे, इट वाज देयर, फाइन. तो that's one. Another thing that क्या कहते हैं, who wrote it? Abul Fazl wrote it. Abul Fazl, who was Abul Fazl? Abul Fazl was one of the courtiers, right? He was one of the नवरत्न of Akbar. तो अब आपको इसके अलावा, अब हमने नवरत्न का नाम लिया तो आपको और क्या बताना चाहिए? आपको 9 जो थे नवरत्न थे, जो बाकी के 8 रत्न थे, उनका नाम पता होना चाहिए, उनकी डेजिग्नेशन पता होना चाहिए कि वो करते क्या थे. फाइन, दैट इज समथिंग दैट यू विल हैव टू डू. अनदर थिंग कि आइन एक्बर इंपॉर्टेंट ही क्यों है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्यों आ रहा है? बिकॉज ऑब्वियसली बिकॉज वो हमारे प्राइमरी हिस्टोरिकल सोर्स है. टू अंडरस्टैंड व्हाट? टू अंडरस्टैंड मुगल एडमिनिस्ट्रेशन, टू अंडरस्टैंड इकोनॉमिक कंडीशंस उस टाइम के, सोशल स्ट्रक्चर, कल्चरल सिंथेसिस, है ना, एजुकेशनल पॉलिसीज. इवन यहाँ पे जैसे क्वेश्चन एजुकेशन पॉलिसीज का है. Now, another question that can come up after reading this question is कि why was even Indian sciences a part of Islamic traditions or Islamic educational curriculum at the time? And now one says Islamic more like कि Persian, उस time Persian वो follow कर रहे थे, right? Sorry, because Akbar की philosophy क्या थी? His philosophy was that of religious tolerance and synthesis. उस time पे Akbar was of the idea of Sulekul. He represented the idea of Sulekul. He came up with the aspiration of cultural integration of whom? Hindu Muslim traditions का cultural integration हो, मिले. यही था कि प्रमोशन हो लर्निंग का, स्कॉलरशिप का, कंपैरेटिव रिलीजन और फिलॉसफी के लिए उन्होंने स्पेस क्रिएट की थी, है ना. इबादत खाना का नाम हमने सुना है. इबादत खाना क्या था? हाउस ऑफ वर्शिप. किस चीज के लिए? जहाँ पे इंटरफेथ डायलॉग हुआ करते थे. डिफरेंट जितने भी रिलीजियंस थे, रिलीजियस स्कॉलर्स थे, वहां पे बैठ के डायलॉग करते थे, डिबेट करते थे, चर्चा करते थे, राइट. एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को क्या बुलाया जाता था? मकताब, मदरसा, कोर्ट स्कॉलर, है ना. और उस टाइम पे ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट्स चलते थे, जैसे मैं बताया संस्कृत टू पर्शियन, काफी हमारे एपिक्स वगैरह उस टाइम पे हुए हैं, क्या कहते हैं, ट्रांसलेट. नाउ वाज देयर अ पैट्रोनेज टू स्कॉलर्स? यस, एट द टाइम देयर वाज. फाइन. करिकुलम डिजाइन वाज कंबाइंड of Islamic and Indian knowledge systems. Therefore, the inclusion of Indian sciences prescribed by Akbar for scholars, right? Now, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो है, अब हम उसको एड्रेस करते हैं. That Akbar prescribed certain traditional Indian knowledge systems, जो कि अबुल फजल ने as Indian sciences लिखा है for scholars to study at madrasas. ठीक है. ये जो थे, ये कौन से सब्जेक्ट्स थे? ये थे आयुर्वेद, ज्योतिष, गणित, व्याकरण, है ना. देवर ज्योतिष, आयुर्वेद, गणित they were mentioned. Sorry, Vyakaran was not there. Vyakaran was used. Alright. For what? For the translation work. Thick. Now, before that, before answering the question, now, although we can very easily answer the question through the hints that I've given so far, but still, we'll go option by option. Fine. सबसे पहले देखते हैं आयुर्वेद को. आयुर्वेद क्या होता है? ये होती है, आयुर्वेद क्या होता है? It's a
साइंस ऑफ लाइफ, है ना। तो ये इंडियन मेडिकल सिस्टम का एक पार्ट है, राइट। इसमें हमारे जो है हीलिंग मेडिसिन के बारे में पढ़ाया जाता है। Alright, now that we are talking about Ayurveda, all that's also revised जो हमने पहले पढ़ा है मेडिकल साइंसेज एंड इंडियन हिस्ट्री के बारे में, एंशिएंट इंडिया के बारे में। चरक संहिता किससे रिलेटेड है? इंटरनल मेडिसिन से। सुश्रुत संहिता इज रिलेटेड टू सर्जरी। अष्टांग हृदय is also an ancient Indian text regarding the medical sciences. Alright, now आयन अकबरी के कंटेक्स्ट में आयुर्वेद का क्या मेंशन? आयुर्वेदा मेंशन है आयन अकबरी में as one of the Indian sciences, but it was more of a specialized professional field. It was not the primary answer that we are looking for. While it is mentioned, it is not the answer to the question. Why? Because Ayurveda represents India's ancient medical knowledge system. It was not suggested or prescribed for scholars to learn at school. Okay. Now the next option is व्याकरण। ठीक है, व्याकरण क्या है? व्याकरण है ग्रामर, है ना। संस्कृत ग्रामर पढ़ने के लिए बोला गया था। आपको लगता है कि बोला गया होगा एट स्कूल्स? वन ऑफ द क्या कहते हैं जो व्याकरण है वो क्या है? वेदांग जो है 6 उसमें से एक, राइट। वेद की जो डिसिप्लिन उनमें से एक है, ठीक। Now it is a foundation for Sanskrit learning, but it was not a part of the scholarship of at the time of Akbar in schools. ठीक है। Now अब जब हम व्याकरण पढ़ रहे हैं तो व्याकरण से रिलेटेड हमें कौन याद आना चाहिए? हमें अष्टाध्यायी याद आना चाहिए। अष्टाध्यायी टेक्स्ट याद आना चाहिए। अष्टाध्यायी किसने लिखा है? पनीनी ने लिखा है। हमें ये याद रहना चाहिए, ठीक है। आयन अकबरी कंटेक्स्ट में व्याकरण का क्या रिलेशन है? अकबर के ट्रांसलेशन प्रोजेक्ट में उसका जरूर यूज हुआ होगा, बट उसको पढ़ाने के लिए स्कूल में एज ए प्रोजेक्ट नहीं था, ठीक। नाउ लेट्स मूव ऑन गणित पे। गणित क्या होता है? गणित होता है मैथमेटिक, अर्थमेटिक, कैलकुलेशन, आप जो चाहे वो बोल लें, मैथ्स बेसिकली, ठीक। नाउ जो आपका गणित का स्कोप है वो अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी, एवरीथिंग वाज कवर्ड गणित फॉर अस, राइट। इंपॉर्टेंस क्या था मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में इस चीज का? इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमने देखा आर्किटेक्चर वगैरह में, बट was it a part of curriculum at school? It was not. Gadat is mentioned in Ain Akbari. It was essential to administration and their system and the architectural systems, but it was a practical science. It was not a part of the curriculum. ठीक है? So this is not the answer. Mathematics was crucial for administration, for use in architecture, commerce, etc. But that's it. That is where it ends. Now ज्योतिष, ठीक है। अब ज्योतिष देखते हैं। ज्योतिष क्या होती है? एस्ट्रोनॉमी कहते हैं जिसको हम इंग्लिश में, एस्ट्रोलॉजी कहते हैं जिसको, राइट। तो ये भी 6 वेदांग जो है उनमें से एक है, बाय द वे, ज्योतिष। तो हमारे जो sorry, just give me a second, I'll just drink some water. हाँ, तो ज्योतिष क्यों इम्पोर्टेंट था अकबर के एडमिनिस्ट्रेशन में, राइट। क्यों? कैलेंडर, टाइम कीपिंग उस टाइम पे, एग्रीकल्चर साइकिल्स वगैरह, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग, मुहूर्त निकालना, उस टाइम पे वैसे भी बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन चल रहा था of different of all the religious comparative religious dialogues होते थे, right? That's when there was a cultural synthesis happening. Therefore, the inclusion of Jyotish happened. Okay. Also, there were also patronage given to court astrologers, right? तो ये भी एक चीज थी। However, ये सब चीजें आपको कहाँ पता चलेंगी? ठीक है, मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, आपको कहाँ पढ़ने को मिलेगी? क्या एनसीईआरटी में है? Might be mentioned very shortly in one sentence. That's why I keep saying that you can refer to the book Loose Ends. It is so fact-based, you will hardly miss anything. If you want to have a standard book to rely on, take the latest Lucent. If you have a previous one, that is also fine.
just keep revising from it. ठीक. Now, is the question remains that is Jyotish listed Jyotish Shastra या फिर Jyotish listed in Aina Akbari as prescribed Indian science? Yes. ज्योतिष जो है वो रिप्रेजेंट करता है परफेक्ट ब्लेंड ऑफ एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोनॉमी, राइट? देयरफॉर it was mentioned, it was explicitly listed for school. ठीक है, that's why this will be your answer. Abul Fazl specifically mentions Jyotish or Indian astrology as one of the Indian sciences prescribed to scholars to learn at schools or madrasas. Okay, now let's also learn about the 9 Navratna. Now that we are talking about Abul Fazl, right? तो अबुल फजल के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें बाकी के भी पता होना चाहिए. तो हमारे सबसे पहले अबुल फजल में पता चल गए. ठीक है, ही रोड अकबरनामा. ठीक, सिर्फ क्रॉनिकलर थे नहीं, ही वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइजर्स टू अकबर. देन फैजी पोएट थे. ऑलराइट, और ये इनफैक्ट भाई थे अबुल फजल के. और फिर तानसेन हम सबको पता है, ही वाज ग्रेट सिंगर म्यूजिशियन. देन बीरबल सिर्फ बेसिकली ही वाज द प्रिंसिपल एडवाइजर. तोडरमल वाज द फाइनेंस मिनिस्टर, जिन्होंने जब्त सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया था. ना दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस यू शुड रिमेम्बर, दिस क्वेश्चन हैज कम बिफोर. कि जब्त सिस्टम जो है किसके टाइम पे हुआ? तो अकबर. किसने किया? टोडरमल. ठीक है, टोडरमल क्या था? फाइनेंस मिनिस्टर थे. ठीक है. देन राजा मान सिंह वाज आल्सो पार्ट ऑफ हिज नवरत्न. ही वाज कमांडर या फिर जनरल ऑफ द मुगल आर्मी. एंड अब्दुल रहीम खाना पोएट थे. इसके अलावा ही वाज आल्सो द कमांडर known for his Hindi couplets. And there was Fakir Raziuddin and then Mulla Do Pyaza. Mulla Do Pyaza में लोग usually पता नहीं क्यों confused जाते हैं. This I really I don't know why, but I just never forget this name somehow. So he was known for his wit, sharp intelligence, and he also had administrative capabilities. That's the important part. So remember that. ठीक है. तो आपको मैंने सोर्स बता दी कि कहाँ से आप कोई क्वेश्चन का आंसर या फिर इसके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ले सकते हैं. ये बहुत ही फैक्चुअल जो क्वेश्चंस आते हैं आप उनको लुसेंस के थ्रू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के थ्रू, रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं. अब जैसे हमने पढ़ाई की तो हमने साथ में प्रीवियसली एंशिएंट इंडिया में जो जो चीजें पढ़ा है, राइट, तो हमने वो भी साथ में रिवाइज कर लिया है. ओके, तो this is how you keep studying comprehensively. ठीक है, चलो इसके अलावा what have I left? हाँ, चलो हम ज्योतिषी की बात ही कर रहे हैं तो थोड़े हम आपको ज्योतिषी या फिर बेसिकली एस्ट्रोलॉजिस्ट की बात करें तो हम कुछ इंपॉर्टेंट एस्ट्रोलॉजिस्ट बता देते हैं. वैसे गणित से भी रिलेटेड है बट आर्यभट्ट वाज आल्सो एन एस्ट्रोनॉमर. वराहमिहिर जिन्होंने बृहद संहिता लिखी, वो क्या कहते हैं, बृहद संहिता दी है. ब्रह्मगुप्त जिन्होंने ब्रह्मगुप्त सिद्धांत दिया था. भास्कर जिन्होंने सिद्धांत शिरोमणि लिखा है ना, प्रोवाइड किया था. ये सारी चीजें भी आप याद रख सकते हैं. याद भी क्या मतलब, इफ यू हैव हर्ड दिस लाइक इट विल सम वे स्टे विद यू. चलिए, अब हम जब पढ़ ही रहे हैं अकबर के बारे में, लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, तो मैं ये इस पे वो लगाना भूल गई, पॉइंट क्लिक अपीयर ऑन क्लिक, बट ठीक है, फाइन. सो अबाउट अकबर, ही started his rule in 1556 and he died in 1605. That's तो इनका था 1556 से. अच्छा, मुगल एम्पायर जो है उसका रूल शुरू कब से हुआ है एंड आफ्टर विच वॉर, ये आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में. दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन बट यू आंसर मी. ओके, सो इनका जो ड्यूरेशन था दैट वाज फ्रॉम 1556 टू 1605.
and he was born in 1542 and his father was Humayun. ठीक है, और इनका मेजर पॉलिसीज क्या क्या थी जिसके लिए इनको याद किया जाता है, दैट इज सुलेकुल, जैसे बताया है, पीस फॉर ऑल, पीस विद ऑल, रिलीजियस टॉलरेंस, राइट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जिजिया अबॉलिश किया था। जिजिया क्या होता है? जिजिया होता है टैक्स जो कि नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था फॉर देयर प्रोटेक्शन, दिस वाज प्रोटेक्शन टैक्स, ठीक है, कि फॉर देयर प्रोटेक्शन फ्रॉम होम, फ्रॉम द रूलर इटसेल्फ, ठीक है। तो वो प्रोटेक्शन टैक्स था जो कि हटा दिया गया था कौन सी ईयर में, 1564 में, ठीक। और उसके अलावा दीन इलाही, डिवाइन फेथ इज अनदर थिंग, जो कि जिसके लिए अनदर पॉलिसी दैट ही वेरी फेमसली इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1582, ठीक। फिर इबादत खाना के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इबादत खाना इंटरफेथ डायलॉग के लिए यूज होता था, वो 1575 में आया, ठीक है। He used to invite scholars from all religions, in fact really from all religions, even I think there were very few left, honestly. फिर हमारे उनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कौन कौन से हुए हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मनसबदारी सिस्टम, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं मनसबदारी सिस्टम पे। इन्होंने क्या किया था मनसबदारी सिस्टम के अंडर, बेसिकली basically the rule combined military and civil rank, ठीक है। इस पे जो है जात, जात कहते हैं इसको, ये ZAT को जात कहते हैं। जात मतलब रैंक, ठीक है, और सवार मतलब कैवेलरी, मतलब घोड़े वाले, ठीक है। इसको एक स्टैंडर्डाइज हायरार्की में उन्होंने क्लियरली सेटअप किया दिया था। इसका मतलब कि आपकी रैंक के बेसिस, मतलब आपके पास जितनी कैवेलरी होगी उसके बेसिस पे आपकी रैंक होगी, आप बहुत सारी, एंड उसके हिसाब से आपकी लैंड होल्डिंग्स होंगी, उस हिसाब से आपकी नोबिलिटी डिसाइड होगी उसके हिसाब से। एंड ऑल्सो ये रैंक वैंक किस चीज के साथ देते थे, अवार्ड ये मेरिट बेसिस पे मिला करती थी, कई बार नोबिलिटी बेसिस पे मिला करती थी, ठीक है, ठीक है। फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स आते हैं। लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स उस टाइम पे क्या चेंजेस आए थे, सर्वे और मेजरमेंट के तरीके स्टैंडर्डाइज किए गए थे, क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड हुआ था उस टाइम पे, रेट्स जो है वो फिक्स किए गए थे। तोडरमल के क्या रिफॉर्म्स थे, जो कि अभी हमने बताया भी है, ठीक है। रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजेशन, उनके थे सूबाज बनाए थे, सूबे जो अभी भी हम यूज करते हैं कि इस सूबे में उस सूबे में रहते हैं हम, तो वो उस टाइम पे ऑर्गेनाइज किया गया था। प्रोविंशियल जो प्रोविंसेस थे वो क्रिएट गए थे, ऑर्गेनाइज किए गए थे, ठीक है। देन कल्चरल सिंथेसिस में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। देन आर्किटेक्चर पे वैसे आपको फोकस करना चाहिए क्लियरली। और सो जब मैं बार बोल रही हूँ कि एपिक्स जो थे वो ट्रांसलेट हुए थे उस टाइम पे, तो एपिक्स ऑफ महाभारत एंड रामायण, ठीक है, उस टाइम पे अथर्ववेद भी ट्रांसलेट किया गया था। ऑलराइट, नाउ आर्किटेक्चर, फतेहपुर सिकरी इज द वर्क ऑफ अकबर, ठीक है। देन रेड फोर्ट एंड बुलंद दरवाजा, this is what you should remember. Buland Darwaza, Red Fort and Fatehpur Sikri. These are three which were made or created during the reign of Akbar itself. Now, art wise, Mughal miniature painting this time पे काफी flourish हुई थी, ठीक है। और म्यूजिक वाइज तानसेन was famous, और म्यूजिकल डेवलपमेंट क्लासिकल फॉर्म्स की हुई थी, ठीक। एजुकेशन के बारे में बात करें, एजुकेशन लर्निंग, बिकॉज दिस क्वेश्चन वाज अराउंड दैट, तो हमने क्लियरली बहुत सारी चीजें फॉलो कर लिया, क्लियर कर लिया। करिकुलम में क्या क्या इंक्लूड था मैं आपको वो क्लियरली बता देती हूँ, ताकि इसके ऊपर कोई फ्यूचर में क्वेश्चंस आए तो आप वो भी टैकल कर पाओ, ठीक है। तो इस्लामिक करिकुलम में आता था इस्लामिक साइंसेस, जैसे कि कुरान, हदीस, फिक्र, ये सब फॉलो क्या कहते हैं इंक्लूडेड थे इनके करिकुलम में। पर्शियन लिटरेचर और इंडियन साइंसेस इंक्लूडेड थे, ज्योतिष, गणित एक्सेट्रा, और फिलोसफी और लॉजिक पढ़ाया जाता था, ठीक है। दैट इज ऑल। नवरत्न मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, तोदरमल, मानसिंह, रहीम खाने खाना, फकीर अजामुद्दीन एंड मुल्ला दुब्याजा।
ठीक है, ये हो गया 9। ये क्वेश्चन जैसे आपके आंखों के सामने आएगा, आप ऑप्शन में से टिक कर दोगे, उसको रटने वाली चीज नहीं है। मुझे याद है क्योंकि लाइक ऑफ कोर्स दैट्स अ सब्जेक्ट दैट आई एम फेमिलियर विद, बट ये कोई रटने वाली चीज नहीं है। So don't waste your time. This is something that just to go through 2-3 times, and when it will come in front of you, you will remember. Okay? तो अगेन मानसिंह क्या थे? मिलिट्री जनरल, राजपूत कमांडर थे। ठीक है, जस्ट रिमेम्बर। नाउ लेट्स मूव। इसके अलावा और क्या था? आइन अकबरी, राइट। आइन अकबरी में हमने मोस्टली सारी बातें कर ली हैं। लेट मी थिंक इफ समथिंग एल्स जो हम सोच पाए। I don't think so. I think this covers most of it. बाकी हमें पता ही है कि what is the sequence of the Mughal emperors, right? सबसे पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, देन जहांगीर के बाद शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, एंड इट गोज ऑन टू बाबर, सॉरी अकबर टू। ठीक है, लास्ट जो थे वो थे बहादुर शाह जफर। ओके, बहादुर शाह जफर। उनकी डेथ कब हुई थी? बहादुर शाह जफर मतलब ओके सॉरी डेथ बोल रहे हो। बहादुर शाह जफर का रेन कब खत्म होता है? विच मार्क्स द एंड ऑफ द मुगल एम्पायर इन 1857। 1857 में क्या हुआ था? 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था। 1857 के रिवॉल्ट जो है उसमें जो दिल्ली वाला पार्ट था उन्होंने हेड कर क्या कहते हैं लीड करने के लिए अग्री कर दिया था। दैट्स व्हाई ही वाज देन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने फिर रिटेलिएट किया था, देन ही क्या कहते हैं ही वाज रिमूव्ड, 2 of his sons were killed in front of him and then he was jailed. All right, now let's move forward. Another later Mughal उसमें फरूख सियार important है, but चलो अभी के लिए उसको छोड़ देते हैं. We will definitely mention it in the later lectures. ठीक है, जब हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को लेके जब मेंशन कर रहे होंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज this. Please pause, although just try and pause and like just try and answer it yourself, and then चलो, I hope आपने पॉज कर लिया होगा, आंख बंद करके आंसर दे दिया होगा hopefully, but yeah, let's just answer it together now. The 3 great Sanskrit grammarians. Okay, हम यहाँ पे उनकी बातें करेंगे, पनीनी, कात्यायन एंड पतंजलि. आफ्टर दिस एनी क्वेश्चन दैट कम्स अराउंड देम you'll be able to answer, whether it's related to chronology, whether it's related to what they have contributed, what their work was about, etc. Okay, so the question says which one of the following statements about the grammarian, grammarian मतलब व्याकरण, ग्रामर मतलब व्याकरण. ठीक है, कात्यायन is correct. He was a contemporary of Panini. He was a contemporary of Patanjali. He belonged to the period between Panini and Patanjali and belonged to the period later than both Panini and Patanjali. Now, this is another question which I feel that many people might be confused with. But इसका और कोई तरीका नहीं है. Just you have to just mug up some things. If not mug up, just go through it at least 2 or 3 times. ठीक है, तो जब आपकी आंखों सामने आएगा और बेसिकली जस्ट अंडरस्टैंड, जब मैं बोल रही हूँ तो उसको एक बार आप अपने दिमाग में विजुअलाइज करने की कोशिश करिए. ठीक है, जब आप विजुअलाइज करेंगे, जब आप समझने की कोशिश करेंगे, तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू यू नो जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. ऑलराइट, नाउ लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड ईच वन प्रॉपर्ली. पहले यहाँ पे हमारे जो मेन है वो क्या क्या है, कौन कौन है. ठीक है, पनीनी है, पतंजलि है और कात्यायन है. बस इतना ही, हमें इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए. आई विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन, राइट. सो पनीनी कब के हैं? हमने इस चीज के ऊपर ऑल्दो हम इन द प्रीवियस लेक्चर्स वी हैव वेरी डीपली डिस्कस्ड
about the chronology, and I've also provided you fact sheets regarding the chronology of all ancient scholars and the various subjects which have developed. But तो यहाँ पे उसका ना रिवीजन हो जाएगा, ठीक है. So Panini was of around 4th century BC, right? 400 to 350 BC, और जो बताया था, है ना. और उन्होंने क्या, उनका मेजर वर्क क्या था? अष्टध्यायी, राइट. अष्टध्यायी. अब चलो अष्टध्यायी की बात कर ही रहे हैं तो उसमें भी बता दो, अष्टध्यायी में कितने चैप्टर्स थे? 8 चैप्टर्स थे. कितना सूत्र उसमें है? 3959 सूत्र है, ठीक है. तो ये हो गया पनीनी के बारे में. तो इनकी अष्टाध्यायी जो है वो फाउंडेशनल वर्क है संस्कृत ग्रामर का, राइट. तो अगर इफ इट इज द फाउंडेशनल वर्क एंड ही इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फर्स्ट grammarians, तो definitely he has to be before कात्यायन, राइट. तो ये हो गया पनीनी के बारे में. देन कात्यायन का क्या था? he was of the time of 3rd century, ठीक है. 3rd century BCE के टाइम पे थे. 300 BCE से 250 BCE के टाइम पे, ठीक है. एंड ही वाज आल्सो नोन एज वाररुचि. ओके. इनका काम क्या था? वार्तिक. वार्तिक वाज द वर्क ऑफ कात्यायन. इन्होंने इसमें क्रिटिकल कमेंट्री की थी पनीनी के काम पे. अब पनीनी काम हो चुका होगा तभी तो वो कमेंट्री करेंगे उस पे. बट चलो ये भी विच आई अंडरस्टैंड कि इतना डीपली नहीं पता होता है, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू सो दैट इट स्टेज इन योर हेड. ओके. नाउ क्या कहते हैं, इनका वो क्या होता है, किस टाइम के थे? 3rd सेंचुरी बीसी के. और इनके वर्क को क्या कहते हैं? वार्तिक कहते हैं, ठीक है. इनका मेजर वर्क क्या है? वार्तिक है. फिर हमारे आते हैं पतंजलि. लेट्स टॉक अबाउट पतंजलि. पतंजलि जो है वो 2nd सेंचुरी बीसी के टाइम पे आए थे, 150 बीसी के अराउंड. एंड उन्होंने महाभाष्य लिखा था. महाभाष्य जो है वो एक डिटेल कमेंट्री है जो कि पनीनी के सूत्र और कात्यायन के वर्तिक के ऊपर है, ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो जस्ट रिमेम्बर, यहाँ पे जब पतंजलि की बात हो रही है तो दिस इज द ग्रामेरियन पतंजलि. दे आर नॉट द सेम. द ग्रामेरियन पतंजलि एंड योगा वाला पतंजलि आर टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड. सो यस, तो हमने इनका टाइमलाइन समझ लिया, हमने इनके वर्क पता कर लिए, ठीक है. तो अब हमें क्लैरिटी हो गई है कि यस, कात्यायन मस्ट बी समवेयर इन बिटवीन. सो द आंसर इज सी. He belonged to a period between Panini and Patanjali. Alright. Now let me think if there's anything else I can provide you with. sorry for this. I'm just very sorry. What can I say? What can I provide you with? हाँ चलो, इसके अलावा और इंडियन ग्रामेरियंस के बारे में बताते हैं. हमें पनीनी, कात्यायन, पतंजलि का पता चल गया, ठीक है. Who is the father of Sanskrit grammar? चलो क्वेश्चन ही पूछ लेती हूँ. Who is the father of संस्कृत ग्रामर? पनीनी, ठीक है. और फिर हमारे आते हैं कि चलो ये 3 हो गए. इसके अलावा और कौन ग्रामेरियन थे? इट वाज भर्तृहरि, ठीक है. भर्तृहरि जो कि 5th सेंचुरी में आते हैं. उन्होंने वाक्य पढ़िय लिखा था, ठीक है. और इट वाज ऑन फिलोसफी ऑफ लैंग्वेज. तो आप एक ये नाम भी याद रख सकते हैं, ऑल्दो नहीं आना चाहिए, बट आई एम जस्ट लेटिंग यू नो. भर्तृहरि. फिर इसके अलावा you should know that there was a French philosopher named Ferdinand de Saussure. Okay, Ferdinand
फर्डिनेंड द सेसोर, जो कि काफी इन्फ्लुएंस है पनीनी के ग्रामर वर्क से, अष्टाध्यायी से. ठीक है. एंड yeah, I think that is it for this particular point. Sorry, this particular question. I hope इसके लिए मैं बस इतना ही कह सकती हूँ, ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए अगेन देयर आर मेनी टेबल्स एंड लूसेंस, just and also if you're referring to just NCERT even, या फिर just the fact sheet which is being provided here, revise it 2-3 times. ठीक है. अदरवाइज है उस पे क्या नाम है, लेसन पे टेबल प्रोवाइडेड है प्रॉपरली टाइमलाइन वाइज, वो आप बार बार रिवाइज करें, वो आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी. फाइन. Other than that, another thing that I would suggest is solve previous year questions. Keep solving previous year questions as much as you can. It will help you, especially in subjects like political science, history, and environment. Okay, it is very crucial that you do. Okay, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. I'll just clean this up. अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो यहाँ से वर्क वगैरह का ले सकते हैं. ठीक है. Now, chalo, next question. Which one of the following statements about Rigved goddesses is correct? And I thought a very fact-based question actually, like you have to know wala situation hai yahan pe. But I'll tell you how to go about this again. You can pause it here and try to answer it yourself. And if you're not able to answer, then just try to take a guess. Now that we are done with about 20-25 questions, all right, or around I guess 15, like around 20 questions, तो हम अब यहाँ पे अब थोड़े बहुत अपने ऐसे गेस वर्क को आर्ट वर्क लगा सकते हैं. ठीक है. एंड ट्राई टू मेक एन इंटेलिजेंट गेस. चलो, आई होप यू मस्ट हैव पॉज्ड एंड नाउ अब आपने एटलीस्ट एक बार अटेम्प्ट करके फिर प्ले किया है. Now, which one of the following statements about Rigved goddesses is correct? ठीक है. Usha represents freedom from sickness. Sinivali bestows children. Aditi is a goddess of dawn, and Raka is goddess of speech. ठीक है. Now for this question, first of all, as usual, we'll focus on the keywords. For example, Rigved. Alright. So what do we know about Rigved? Rigved is the earliest text. It's the earliest Ved or Ved. ठीक है. कब लिखा गया था? 1500 to 1000 BC के टाइम पे it was written. 1500 to 1000 BC के टाइम पे. Okay, this is the timeline of the Ved that you should know, but it's okay. ठीक है. तो इसमें कितने hymns हैं? 1028 hymns हैं. I've told it many times. The question has come even more times. तो 1028 hymns हैं. And 10 मंडल हैं. कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं. इसमें किस चीज के बारे में लिखा है? पर्पस क्या है? It has hymns of praise to gods and goddesses. ठीक है. It is the oldest. It is supposed to be the oldest religious text in the world still in use. Okay. Now, nature क्या है इसमें रिलीजन का? पॉलीथीस्टिक है, राइट? सॉरी फॉर माय वॉइस. इट इज पॉलीथीस्टिक. पॉलीथीस्ट क्या होता है? पॉलीथीस्ट मतलब मेनी गॉड्स एंड गॉडेसेस हो.
तो उसको पॉलीथीज्म कहते हैं। ऑलराइट, और उस टाइम के मेजर गॉड्स कौन थे? इंद्र, सूर्य, ये सब थे। ओके, नाउ अब हम पढ़ते हैं, अब हम पहले एक बार देखते हैं गॉड्स एंड गॉडेसेस इन ऋग्वेद कौन कौन से थे। लेट मी सी, वेट चेक समथिंग। हाँ, तो मैंने यहाँ पे भी लिखा, आपको यहाँ मेंशन किया हुआ है। गुड, ठीक। दिस इज पॉलीथिस्टिक नेचर, नेचर ऑफ क्या कहते हैं, नेचर वर्शिप करते थे उस टाइम पे। डाइटीज जो थे वो पर्सोनिफाइड नेचुरल फोर्सेस हुआ करते, जैसे सूर्य देव है, इंद्रदेव क्या रिप्रेजेंट करते थे रेन एंड लाइटनिंग, राइट। नो आइडल वर्शिप वाज देयर ड्यूरिंग द ऋग्वेदिक पीरियड, नो टेम्पल्स मेंशन इन ऋग्वेद, सैक्रिफाइसेस जो है वो रिलीजियस एक्ट में आते थे, और ब्राह्मण्स जो है वो कंडक्ट करते थे रिचुअल्स जो, ठीक है। और प्रेयर्स जो थे वो क्या किस चीज के लिए करते थे, ऑब्जेक्टिव क्या था प्रेयर का उस टाइम पे? कैटल, सन्स, और वेल्थ, हेल्थ, विक्ट्री। ऑलराइट, उसके अलावा कॉन्सेप्ट क्या था? रित, रित मतलब कॉस्मिक ऑर्डर, मॉरल लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और गार्जियन को किसको कहते थे? रित का गार्जियन कौन कौन थे? मित्र और वरुण। चलिए, now that we have established the basic understanding of Rigved, now let's move forward. Okay, we have moved forward to another question by mistake. I cannot go back, so I'll just continue here itself. Don't mind. पहले हम गॉड्स को यहाँ पे कवर करेंगे एंड देन we'll move forward. ठीक है, इसको अभी आप ध्यान मत दीजिए. We'll go back to that question again. Don't worry about that. Fine. चले, अब पहले हम ऋग्वेदिक डाइटीज पहले देख लेते हैं. ठीक, मेल गॉड्स में कौन कौन आता था? मेल गॉड्स में आते हैं हमारे इंद्र, अग्नि. ठीक है, कौन कौन आता है? इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम, राइट, मित्र, सूर्य, यम. फीमेल गॉडेस में क्या कौन कौन आता है? उषा, अदिति, सरस्वती, पृथ्वी, रात्रि. ठीक, माइनर ये जो क्वेश्चन था हमारा वो किस पे था? हमारा सिनेवली, राका और अनु, इन सब पे था. ये क्या थी? ये माइनर गॉडेसेस थी. ठीक, सिग्निफिकेंट हमें इतनी यही पता थी ना, उषा, सरस्वती, पृथ्वी, रात्रि. लेकिन ये माइनर गॉडेसेस थी, सिनेवली, राका, कुहू, अनुमति. ठीक, और अब यहाँ पे हम गॉडेस वाले उस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं. क्वेश्चन वही है कि दो टाइप की होती थी. ठीक है, दो टाइप ऑफ गॉडेसेस थी. एक होती है मेजर गॉडेस, एक होती है माइनर गॉडेस. नाउ मेजर गॉडेस का से मेरा क्या मतलब है? क्या वो ज्यादा थी, कम थी? कोई कुछ ज्यादा कम नहीं, किसी को मैं नहीं कह रही. बट मेजर गॉडेस होती थी जैसे उषा, अदिति, सरस्वती, पृथ्वी, हाँ, रात्रि. ये सब हो गए आपकी मेजर. फिर हमारे वही माइनर गॉडेस बोला सिनेवली, राका, कुहू, अनुमति. ये सारी लूनर फेस से रिलेटेड थी. ठीक है, किससे? लूनर फेस से. और चलो अब पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि इनका फंक्शन क्या था, और ताकि हम समझ पाए कि क्या एग्जैक्टली सही है और क्या गलत है. ठीक ना, उषा जो गॉडेस थी उनका क्या रोल था? वो गॉडेस ऑफ डॉन है. डॉन मतलब DAWN, DON वाला नहीं, DAWN. उषा वॉज दी गॉडेस ऑफ डॉन. उषा मतलब सवेरा. ठीक है, हमने हिंदी पर्यायवाची में तो पढ़ा ही है. उषा मतलब सवेर, लाइक द मोस्ट अर्ली मॉर्निंग, सवेरे एकदम, डॉन. ठीक है, क्या फिर उषा द फंक्शन और द डोमेन ऑफ दिस गॉडेस, जैसे कि मेंशन द प्रीवियस क्वेश्चन में, was to
was for freedom from sickness? No. She was the goddess of dawn. Now, सिनीवली, जो सेकेंड आपका ऑप्शन था सिनीवली पे, रुकिए, सिनीवली, सिनीवली का क्या रोल था? सिनीवली बेस्टोस चिल्ड्रन एंड फर्टिलिटी। क्वेश्चन में क्या लिखा था? क्या सिनीवली में ये लिखा था दैट शी वाज sought after for bestowing children? Yes, तो ये सही है। सिनीवली was the goddess of fertility. Now, Aditi पे थर्ड क्वेश्चन क्या था? Goddess Aditi was the goddess of infinity of freedom. No. क्या कहते was no, क्वेश्चन था कि she was the goddess of dawn, जो कि उषा है, बट ये उल्टा लिख दिया था। बट नो, शी इज द गॉडेस ऑफ इन्फिनिटी और फ्रीडम। एंड राका जो थी, जो कि फोर्थ ऑप्शन था, उधर लिखा था कि शी इज द गॉडेस ऑफ स्पीच, राइट? इट वाज रिटन दैट शी वाज द गॉडेस ऑफ स्पीच, बट दैट इज रॉन्ग। शी वाज द गॉडेस ऑफ राख, मतलब फुल मून, ठीक है? शी वाज द गॉडेस ऑफ फुल मून, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। सो उषा रिप्रेजेंट्स dawn, तो she is the goddess of dawn. एंड सॉरी, उसके अलावा सिर्फ सिनीवली जो है वो हमारा राइट आंसर है। शी वॉज अ माइनर गॉडेस एसोसिएटेड विद लूनर फेज, फर्टिलिटी, चाइल्ड बर्थ, बेस्टोइंग चिल्ड्रन से इनका रिलेशन है। अब चलो, ये क्वेश्चन हमने 4 गॉडेसेस के बारे में पढ़ लिया। अनुमति एज किस चीज की गॉडेस थी? शी वाज दी goddess of day before full moon. She is associated with day before full moon and favor और grace के लिए पूजी जाती हैं। और कुहू क्या होता है? कुहू जो है वो कुहू न्यू मून डे से एसोसिएटेड है, ठीक है? और या दैट्स इट। उसके अलावा आई थिंक मैंने एक्स्ट्रा आपको 2-3 गॉडेसेस भी बता ही दी हैं। Is there anything left? Let me think. Another thing is कि राका जो है, जो गॉडेस राका है, जो गॉडेस ऑफ फुल मून है, अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि शी इज एसोसिएटेड विद bestowing prosperity, abundance, fulfillment, then the answer can be yes, क्योंकि eventually she was sought after for that, ठीक है? अब जैसे हमारा क्वेश्चन था कि गॉडेस ऑफ स्पीच है, राइट? तो गॉडेस ऑफ स्पीच वो गलत है, तो लेकिन है कौन फिर? वाक। वाक मतलब स्पीच होता है ना, तो वाक ही नाम है ऑफ दैट गॉडेस। शी इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डीटीज ऑफ स्पीच। फिर सरस्वती इज अनदर स्पीच रिलेटेड, विजडम रिलेटेड, लर्निंग रिलेटेड गॉडेस, सरस्वती माता, ठीक है? सो आई थिंक दैट इज इट। रिमेंबर, उषा डॉन, सिनीवली फर्टिलिटी गॉडेस, अदिति related to freedom, infinity, and Raka is full moon goddess, not speech, ठीक है? और इसके अलावा I think we have covered most of it. ऋग्वेद को लेके आप हो सकता चाहें तो एक कवर कर सकते हैं वापस जाके। Another thing I would appreciate is go back and weaponization, एक weapons पे हमने काफी questions cover किए थे, तो weapons and weapon makers पे, तो वो भी आप cover कर लीजिएगा। ये आप याद रख सकते हैं कि उस टाइम पे मेल गॉड्स में इंद्र वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। इंद्र इज द गॉड ऑफ थंडर, वॉर, रेन, ठीक है? और he was also called पुरंदर। अग्नि जो है, अग्नि was the second most important god of fire, ठीक है? He was also the messenger between humans and gods, भाव। अब बेसिकली जब कोई पूजा होती तो आहुति आप किस चीज में देते हैं? अग्नि में देते हैं, राइट? तो इट्स बेसिकली दैट ही वाज आल्सो कंसिडर्ड द मैसेंजर बिटवीन ह्यूमंस एंड गॉड्स।
वरुण इज गॉड ऑफ वाटर, कॉस्मिक ऑर्डर, ठीक है, रथ। और सोम इज बेसिकली गॉड ऑफ रिचुअल ड्रिंक, ठीक। और जो पूरा 9th मंडल है बाय द वे ऋग्वेद का, इट इज डेडिकेटेड टू सोम, तो यू कैन रिमेम्बर दैट इज वेल, प्लीज डू रिमेम्बर द जो 9वां मंडल है, इट इज रिलेटेड टू सोम, ओके। एंड सूर्य इज द सन गॉड, और मित्र इज बेसिकली गॉड ऑफ फ्रेंडशिप, यूजुअली मित्र वरुण से मैच कर दिया जाता है। और रुद्र इज द गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, माउंटेन्स, बाद में फिर उनको शिव का नाम मिलता है। फिर वायु देव इज गॉड ऑफ विंड, यम इज द गॉड ऑफ डेथ, अश्विन इज द ट्विन डिवाइन फिजिशियंस, ठीक है। और नसत्या इज गॉड ऑफ हेल्थ, मेडिसिन, डॉन, है ना, ये सारी चीजें आप याद रख सकते हैं। और yeah, I think that's it. Goddesses में we have covered Aditi, Usha, Saraswati, Prithvi, Ratri, Vag, और minor goddesses में सिनिवली, राग, कुहू, अनुमति, ठीक है। एंड दैट इज इट। यज्ञ आपको पता होना चाहिए कि एक रिलीजियस एक्ट, को रिलीजियस रिचुअलिस्टिक एक्ट है। और सोम आपको पता होना चाहिए कि 9th मंडल से रिलेटेड है। if I'm missing anything, do let me know. I think which important hymns we can go over. That is something that I would say we can go over. सूक्त में कुछ important है, जैसे पुरुष सूक्त, ठीक है। पुरुष सूक्त में हमारे ओरिजिनल सोसाइटी के बारे में बताता है, इट इज अबाउट कॉस्मिक बीइंग, ठीक है। और क्या कहते हैं, 10वें मंडल में है, ठीक है। एंड दिस इज वेयर पहली बार 4 वर्णों का वो होता है, ठीक है, मेंशन। ये क्वेश्चन ऐसे ही बन के आता है कि वेयर वाज मेंशन ऑफ द वर्ण सिस्टम फॉर द फर्स्ट टाइम, तो वो that was in ऋग्वेद in पुरुष सूक्त, ऑलराइट। एंड पुरुष सूक्त किसमें, 10th मंडल में। फिर नसदीय सूक्त है, और वो कॉस्मोस के बारे में है, वो भी 10th मंडल में है। फिर गायत्री मंत्र है, गायत्री मंत्र भी जो है वो ऋग्वेद में मेंशन है। ऋग्वेद के कौन से मंडल में, 3rd मंडल में, ये याद रखिएगा, ये 3rd मंडल में, पहले दूसरे तीसरे, मतलब पहले दूसरे 10वें किसी में नहीं है। 3rd मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र मेंशन्ड है, ओके। फिर हमारा देवी सूक्त भी है, और उसके अलावा अर्ली वैदिक और लेटर वैदिक में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, दैट इज समथिंग यू शुड नो। गिव मी अ सेकंड, आई जस्ट हैव सम वाटर अगेन। इसके अलावा जस्ट रिमेम्बर कि इस टाइम पे आइडल वर्शिप नहीं थी, इस टाइम पे टेम्पल नहीं मेंशन्ड है, इस टाइम पे प्रीस्टशिप, मतलब ब्राह्मण्स वर लाइक का वो जो ब्राह्मण सिस्टम जिसको हम ब्राह्मणिकल सिस्टम कहते हैं, दैट वाज मॉडरेट, वाज नॉट ओवर पावर, ठीक है। चलिए, everything that I've said, please make a note of it. If you have not, just rewind and like write it. बाकी PDF में आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। And yeah, that is it. I think to recall everything, Usha is the goddess of dawn, not sickness. Sinivali is the goddess of fertility who bestows children, so that is the correct answer. And Aditi is the goddess of infinity, freedom, not dawn. Raka is the full goddess, not of speech. Speech की goddess कौन है, वाक, या फिर क्या कहते हैं, not this, it's not synonymous, but सरस्वती माता is also the major goddesses of speech. Alright, चलो ये हमारा हो गया। I think I have covered a lot of field or ground for a lot of ancient medieval history. I hope you won't get any of the questions wrong related to
Akbar, Mughal Empire, or Rigved, or related to chronological questions when it comes to ancient Indian literature. All right, because we have covered it very thoroughly, and now the questions are just being repeated. Now we can see it's this quick. हमारे जो हम इससे पहले जो एक्सरसाइजेस किए हैं, राइट? तो आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप उस चीज को रिवाइज करते रहें जो हमने पढ़ाई की है, एंड जस्ट कीप लाइक the fuel going, keep solving previous year questions, keep solving mocks, keep revising from your standard book, whatever it is, and do ask me any questions, any doubts that you have regarding any question that we have discussed here today, any concept that we have discussed here today, or any fact that you did not understand, or just anything that you want me to add. Okay. Another thing is कि I again am asking all the Hindi medium students to like understanding wise अगर उनको जरूरत है तो definitely of course being fluent in English, they're not fluent but like knowing English and just being able to understand English makes the competitive exam way easier. So I would appreciate that, but definitely if you're facing problems, reach out, do let us know. Maybe we at Meta Learning can help you in some way by at least हम bilingual तो कर ही रहे हैं, but maybe just providing questions and the side notes in bilingual languages as well, right? So do let me know however you feel about the lectures, and if there's any comment, any feedback for me, be kind about it, please. And that's it. I am Prerna Verma. I'll meet you in the next lecture, and hopefully with a better voice. And thank you so much. Okay, bye bye. Also, about the next lecture, I would like to say कि next lecture may hopefully we will be starting with some political science questions or environment based questions. अभी तक हम mix पे ही चल रहे हैं. What I'm hoping for April end is to be able to segregate some questions. First ये 2025 के questions है. Once it is done तो हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे. Another thing is कि ये जो questions मैं use कर रही हूँ, it is being used for, like these are snippets from one जो UPSC की website है वहां से, and second उस वाल ने अपने PDF अपलोड कर रखी है वहां से, ठीक है, और of previous questions for CDS and NDS aspirants GS. So for copyright related stuff, like definitely use either UPSC की official website or just buy it from here. And that is your call. Just wanted to let it be here as well as a fact that like I'm just mentioning it's not a fact of copyright at all. Alright, chaliye. Thank you so much. Thank you for attending, and yes, have a very nice day.